flagship project is wheelchair skill training. Okay, so wheelchair skill training I will explain you later. So about everything. So second is sports for all. So we do run a program for person with locomotor disability on different sports, multiple sports. So this is on 2023 we had a program. So you can see the video. So we will provide training on those sports, like 8 sports, and then we will give you an opportunity and then बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या थ्रो बॉल, कोई भी गेम्स जो आप खेले हो? थ्रो बॉल. Okay. डिश थ्रो. हाँ, ओली डिश આવે ને આપણે જે ફેંકીએ ઓલી શોર્ટ પુટ ટાઈપ. Disc. Okay. I understand. Okay. Visby is different. That's plastic one. Visby is plastic one. Throw ball. Super, sir. Very good. So like similar, we will provide training on those sports. There will be a coach and we will train them, and then we will keep the small tournament for us, and then we will, next they can go to a state level tournament and again national level tournament. So this is like we are providing a training for them and they can go and they can learn it and do it. ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको स्पोर्ट्स पर भी कॉन्सेंट्रेट ध्यान दिलवाया जाता है कि आप जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो. अभी जैसे खुद गया था, हम लोग एवरीडे शाम को 1 घंटा स्पोर्ट्स खेलते थे. कोई जिसको बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन खेलता था, वॉलीबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे हम वहाँ पे, ताकि आप चीज़ें अपने स्पोर्ट्स भी जितना इंप्रूव करेंगे आपकी बॉडी का फिटनेस उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप ज़्यादा मेहनत करना चाहे तो आप जाके नेशनल लेवल पे भी वो चीज़ खेल सकते हो. तो इन लोगों का ओरिएंटेशन खाली इतना नहीं है कि आप लोगों को व्हीलचेयर में सिर्फ ये करवाना है, सिखाना है. आपको स्पोर्ट्स के लिए भी उतना ही ध्यान देना चाहिए करके. Yes. Is it boring for you? आप लोगों को शायद बहुत बोरिंग लग रहा है. नींद आ रही है क्या? Okay. If you are with me, clap once. If you are with me, clap twice. Good. So the next activity is we will do AT consultation. AT consultation is we will assess the person and then we will provide them the device. Devices like wheelchairs, walker, any kind of device. So we will do the assessment as a clinical assessment and then we will help them with getting the device. Okay? So college, and we will go to the community and we will train them. So train students like especially healthcare students and other students. सब कॉलेजेस में और उस तरह से भी जाके लोगों को, जो नॉर्मल लोग होते हैं, हमें काफ़ी बार कहीं बाहर जाते हैं लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है हमें हेल्प किस तरह से करनी है. तो इन लोगों के प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ व्हीलचेयर वालों को ही सब कुछ सिखाना है. ये लोग नॉर्मल लोगों को भी कॉलेजेस वगैरह में जाके सिखाते हैं कि हमें व्हीलचेयर वालों की हेल्प किस तरह से करनी है, ताकि कोई गलत तरीके से पुश ना कर दे या व्हीलचेयर से गिरा ना दे आपको. तो इन लोगों के प्रोग्राम में हर चीज़ की एक फैसिलिटी है. Again, there is a YouTube channel called Touch Freedom. So Touch Freedom is kind of e-learning, self-learning platform. So in that platform there are like different videos. So wheelchair skill training. So how to go on a wheelchair, how to transfer it, and basic information about spinal cord injury, secondary complication, how to prevent it. So everything is like a self-learning video. There will be like 2 minutes or 3 minutes video. You can watch it and you can learn by yourself. So there is a YouTube channel called Touch Freedom. It is designed in collaboration with Ganga Foundation. Okay, there is an NGO. YouTube channel है Touch Freedom नाम से.
जिसमें आपको सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है, ट्रांसफर्स वगैरह छोटी छोटे वीडियोस में 2-2 3-3 मिनट के वीडियोस डाले हुए हैं डेली एक्टिविटीज़ के, जो आप लोग अच्छे से सीख सकते हो, समझ सकते हो। आप लोग चाहे तो अभी अपने यूट्यूब पे खोल के सर्च करके इसको देख सकते हो कि अब सब्सक्राइब करके रखो ताकि उस पर जो भी वीडियोस आप देख पाए। ये गंगा फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने बनाई है और इन पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको सीखने समझने के लिए एक आसान बनाने के लिए की हुई है करके ऐसा। Okay. I'm done with the orientation. Here I have small session. Okay. So before that, we'll do the push-up and we'll start. Come on. Push-up. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Great. So what is this picture? So ये तो पूर्णा का वर्जन है। So here there is a short topic, how to become an active wheelchair user. How many of them are active here? Rise. कितने लोग हैं जो अपने व्हीलचेयर पे एक्टिव है, व्हीलचेयर चलाना सारी चीज़ें खुद से कर लेते हैं? वेरी गुड। अरे जितनी करो उतनी। वेरी गुड, वेरी गुड। You are not perfect. Good. So the thing is, active, to become an active wheelchair. So first we have to, the change has to happen from ourselves. So inside we have to think. So I have to be, I have to active when doing physical activity. I have to independently, I have to do all kind of day-to-day life activities. So the change has to happen inside us. Then एक्टिव बनना मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप व्हीलचेयर बाहर निकल के 2-4-5 किलोमीटर चला रहे हो। एक्टिव होने का मतलब है आप अपने अगर घर में भी व्हीलचेयर पर बैठ के अपने सारी एक्टिविटीज़ जो है वो खुद से व्हीलचेयर पे करे करके ऐसा, उसे भी एक्टिव ही कहा जाता है। एक्टिव कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके व्हीलचेयर पे कोई दूसरा बाहर से जाके आए ये वगैरह करके। एक्टिव होने का मतलब जो है आप एक बेसिकली समझिए कि जैसे हम अपने दिमाग से काम करते हैं, हर चीज़ें करके सोचते वगैरह है करके देख रहे कुछ करते हैं, उसी तरह से व्हीलचेयर पे भी हम सारी एक्टिविटीज़ हम खुद से करें। एक रूम से दूसरे रूम जाना है, किचन में जाना है, कोई छोटा मोटा काम करना है वगैरह, वो सारी एक्टिविटीज़ जो करनी है वो हमें व्हीलचेयर पे करनी है, वो भी एक एक्टिव पार्टी है अपनी व्हीलचेयर का। तो वो सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती है। So there are like 6 pillars. We have made it like if you follow the 6 tips, you can become an active wheelchair user. Okay? Any idea what are those will be the tips, pillars? 6 चीज़ें होती है जो हमें व्हीलचेयर एक्टिव बनाने के लिए, अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए वो लोग गिनते हैं करके ऐसा। 6 पॉइंट्स होते हैं। आप लोग कुछ गैसेस करना चाहोगे वो क्या 6 पॉइंट्स हो सकते हैं? अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग। अच्छा, और कुछ? Strength. So basically he is correct. So it is a rehabilitation. So rehabilitation is where it will help us to get back to our day-to-day life activities. So basically rehabilitation is, it will make us do what we were doing before the injury. So the rehabilitation, again, it is a team approach. So everybody will be there. So there will be a doctor, there will be a therapist, there will be a family member, and there will be a user. So everybody will work for a cause, and then we will bring out a change. So that's what rehabilitation. So here का मतलब पुनर्वास। पुनर्वास में हम आपको जो इंजरी होने के बाद हमारी लाइफ एक बहुत बड़ी बदल जाती है करके, हमारी लोअर बॉडी जो है वर्क नहीं करती है, बट हम सारे काम जो पहले अपने नॉर्मल बॉडी से कर पाते थे वो सारे फिर से अपन कर पाए, वो सारी सिखाने की बात होती है, उसे पुनर्वास रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। तो उस चीज़ को समझना होगा कि हमें पुनर्वास की कितनी ज़रूरत है और उसके क्या क्या प्रकार हैं। So again, this is a team approach. So these are all the persons who will be there in the team: physician, physiotherapist, occupation therapist, psychologist, rehab nurse, and a social worker. And again, the team will change based on the goal. Okay? If at all your goal is like to get back to your work, vocational counselor will come and add. So again, based on the goal and based on the person, the team will change. Understood? एक तरह की टीम होती है जो आपके पुनर्वास में मदद करेगी आपको, जिसमें डॉक्टर्स आ गए, आपकी फैमिली मेम्बर्स आ गए, फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, सोशल वर्कर आ गए। आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नेसेसिटीज़ होगी, उसके हिसाब से आपकी टीम हो सकता है अलग हो, बदल सकती है करके ऐसा। बट आपको एक बात की समझनी है,
कि ये सारे लोग होंगे जो आपको पुनर्वास में मदद करेंगे। Yes. So, like in the first pillar, so the basic thing is, are you doing any exercises regularly? Exercise. Everybody. Good. Stretches you do. Yeah. So the basic thing is, in the rehabilitation, what we will do is, at least in a daily time, so like 30 minutes or 1 hour you have to spend for exercises. So the exercise, if you do it, there will be like 3 benefits: physical, functional, and psychosocial. Physical is, if we are doing exercises, our body will be good. So we will be active. So we won't have any complication like tightness, contracture, and we will be maintaining, we can maintain our strength and then we can improve it. So that is a physical benefit. Functional benefit, if we are doing exercise, we can do our activity by ourselves. That is independent in daily activities. So third is psychosocial. Again, if we are doing all these exercises, we can vent out our stress. Mentally we can be peace. So that's what the benefits of exercise are 3: physical, functional, and psychosocial. Okay. So and now we need to know when and when not to do the exercises. Okay. So if you are having any chest pain, एक्सरसाइज कब करनी है और कब नहीं करनी है, ये इनके बारे में बता रहे हैं अभी। आप लोग एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए इनसे, फिर मैं आगे आपसे बोलता हूँ। if you are having a fever, and if you are having a cold sweat, and if you are having a vomiting or nausea, irregular heartbeat, dizziness, severe shortness of breath or chest pain, if you are experiencing these symptoms, we have to stop if you are doing any exercise and you are experiencing this symptoms, you have to stop, and then you have to, if at all it is reducing it, it's fine. If at all it's not reducing, you have to go and check with the doctors. आपको एक्सरसाइज जो नहीं करनी है, कभी अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, कभी आपकी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके पसीने निकल आते हैं करके, ऐसा इस तरह का जब आपको अनुभव हो, तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। ये कुछ ही तरह का एक नेगेटिव सिम्टम्स है कि भाई आपको इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। तो कृपया करके जब भी इस तरह का कभी कुछ आपको हो करके, बुखार हो, हार्ट बीट ज़्यादा लग रही हो, आपको पसीने आ रहे हो करके, चक्कर आ रहे हो, तब खास करके एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। AD, right? Autonomic dysreflexia. Yeah. Sorry. So especially people having injury above T6 level, T6 and above T6. So they will be experiencing these kind of symptoms. It's due to autonomic dysreflexia. Okay. अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मतलब आपको पसीना आ रहा है, हाथ में ज़्यादा सा आपको महसूस हो रहा है आपके हार्ट बीट्स, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा रेडनेस हो रहा है हैंड्स में, और या फिर आपका ब्लैडर डिस्टेंडेड है, अगर ऐसा मतलब यू आर फीलिंग लाइक हेडेक है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी पोजीशन में हो, अगर आप लाइंग हो तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी पोजीशन में पहले प्रॉप्ड अप, मतलब आपको बैठना है। अगर आप सुपाई मतलब सो रहे हो तो थोड़ा उठ के बैठना चाहिए, मतलब नीचे तकिया रख सकते हो और बैठ सकते हो। फिर आपके जो क्लोथ्स है वो लूज करने चाहिए सबसे पहले। और अगर आपके कोई मतलब आपके बेड पे अगर आपको सेंसेशन नहीं है, अगर कोई चीज़ है जो आपको चुभ रही है, जैसे कि नीडल वगैरह हो गया, तो उसको या फिर कुछ आपने रखा है तो उसको साइड में करना है। और ऊपर से उसके बाद भी नेल्स वगैरह है तो वो भी चेक करना है, अगर नाखून लग रहे क्या पैर को। ये होने के बाद और आपको इसके बाद फिर देखना कि क्या आपका पेट फूला हुआ है क्या, या ब्लैडर मतलब अगर आपको ट्यूब लगी है तो वो ब्लॉक है क्या। अगर ये सब है पहले से आपको ये सब कर लेना है, और फिर आप डॉक्टर के पास तुरंत जा सकते हो। बीपी ज़्यादा होता है एक्चुअली इस कंडीशन में, जिसके वजह से आपको बाकी जो बीपी ज़्यादा होने के कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये करना आपको, आप बाय डिफ़ॉल्ट ये कर सकते हो कि पहले आप जैसे सोए तो उठ के बैठ सकते हो, और तुरंत कपड़े लूज़ है तो लूज़ करना है, नाड़ी है तो फिट टाइट क्लोज नहीं रखना है, और बाकी सब चेक कर लेना है सब कुछ है क्या नहीं। ठीक है, थैंक यू। या हाँ, मैं जब भी चलती हूँ पूरा स्प्लिंट पहन के, मैं पैराप्लेजिया हूँ, तो मैं पूरा बॉडी मेरा शिवर होता है, मतलब ये पूरा शिवरिंग होता है, पूरा वाइब्रेट होने लगता है पूरा बॉडी। ऐसा क्यों होता है?
एक तो वीकनेस हो सकता है, दूसरा है कि मतलब टोन बढ़ गया होगा आपके अपर लिम लोअर लिम का टोन ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। जब टोन ज़्यादा बढ़ता है तब हम उसको कुछ एक्टिविटी करते तो और थोड़ा इंक्रीज हो जाता है टोन। एक कदम आगे लिया, वो शिवरिंग होना चालू हुआ, फिर मैं रुक जाती हूँ, फिर दूसरा कदम आगे लिया, वो टोन तो बढ़ने की वजह से फिर से वो शिवरिंग वाइब्रेशन, मेरा बॉडी पूरा शिवर होता है ना, वैसे होता है मुझे एक बार चेक भी करना पड़ेगा, बट टोन बढ़ने की वजह से होता है ऐसा। मतलब जब भी हम कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपके पास कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता है, तो आप एक एक्टिविटी करने जाते हैं तो उसका इनपुट ज़्यादा बढ़ जाता है तो वाइब्रेट कर सकता है। इसको क्लोनस भी बोलते हैं, जैसे क्लोनस आता है नॉर्मली। नहीं, पैर में वाइब्रेशन नहीं होता है, ऊपर अपर बॉडी वाइब्रेट होती है। तो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा इसके लिए। वो होता है, चेक करके बताना पड़ेगा। ओके। या वो अभी मैंने महसूस करना चालू किया है, अभी होता है वो। ओके, अभी मैं चेक करके बता सकता हूँ आपको। हाँ, थैंक यू। Thank you. So we'll do some exercise. Okay? So so basically लेकर के ऐसा, तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो है बता रहे हैं वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग टाइप के लिए है। marathon. So pushing a wheelchair for a marathon is aerobic activity. Okay? So lifting a dumbbell. So lifting a 5 kg and 10 kg dumbbell is a strengthening activity. Doing stretching is a flexibility. The girl them skill out. Understood? Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say, well, on the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. I can see the girl them broke out on the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on. Girl, me can see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah eat no yam, no steamed fish, no green banana. But down is धीरे-धीरे करना है, बहुत ज़्यादा तेज मूवमेंट नहीं करनी है। I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते जाइए। from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you राइट हैंड ऊपर लीजिए, लेफ्ट लीजिए आप, can be the mom. Oh oh. एक पैर पे एक हाथ ऊपर कीजिए। And if it is out of me, if it is out, 'cause I got the remedy for make it easy stress out. Me have a flat to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is my chest out. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh, y'all know some crazy now. This straight drop it and a Bridget and flavor show. Oh oh, time for we make baby now. So stop boy like you are getting. देखिए बगल वाले को चाटा मत मार दीजिएगा। Don't play me now, 'cause I'm a fits and fat not greedy, yo. Oh oh, my loving is the way to go. My loving is the way to go. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh, when you roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, just spark it right here, keep it undercover. Come in love how you fit in your blouse and you fat in your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Because the girl them broke out on the floor. From you don't wanna work this performer. From you don't wanna man where can't turn you on. Girl, me can see you when them upon ya. Can't stand for the long, nah eat no yam, no steamed fish, no green banana. But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. अब आप लोग कितने टाइप से एक्सरसाइज किए, 2 मिनट हार्डली किए करके। कितनों को शोल्डर में पेन फील हुआ, यहाँ पे पेन फील हुआ कुछ किसी को? हाँ, तो इसका मतलब आप लोग आलसी, आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो घर पे।
हाँ नहीं, जिसका हो रहा है उसको कुछ पेन नहीं हो रहा होगा करके ऐसा, बिकॉज ये बहुत छोटी और सिंपल एक्सरसाइजेज है। बट अगर जो नहीं करता है, अभी जैसे मैं भी इतना एक्सरसाइज नहीं करता हूँ घर पे रोज करके, मुझे भी थोड़ा पेन फील हो रहा है, मैं भी आलसी हूँ इस तरह से। तो मतलब कहने का मतलब ये बहुत ही सिंपल और छोटी एक्सरसाइजेज है जो हर कोई अगर करे घर पे दिन के 15-20 मिनट भी, तो ये आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है। ठीक। Start from the neck and then shoulder, elbow, hand, and then upper body, that is trunk. Okay, we have completed till the hand, so now we are going to the trunk. So trunk, so turning. So you can keep it like this and turn. If people have difficulty in doing it, they can hold onto the wheelchair. सारे जो गेस्ट्स आए हैं, फैमिली मेंबर्स आए हैं साथ में, प्लीज आप लोग भी सभी एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। So if people higher level injury, they can do like this as well. व्हीलचेयर को अपनी इस तरह से एक यहाँ पे हाथ रख के पकड़िए, अपने व्हीलचेयर के व्हील को, और अपने आप बॉडी को घुमाइए, जितना घुमा सकते हो उतना ही घुमाइए, ज्यादा मत घूम जाइएगा। This is for cervical level injury. सर पैराप्लेजिक्स हाई लेवल इंजरी, मतलब ओके, जिनकी इंजरीज हाई लेवल की है, T4 T5, उसके ऊपर की इंजरी है, T1 T2 T3, ये सारी उनके लिए एक्सरसाइजेज है। Paraplegic, they can hold it like this and they can turn. For जो पैराप्लेजिक्स है, जो T5 के नीचे की इंजरी में है, जो घूम सकते हैं इजीली, वो अपने हाथ को इस तरह से रख के अपनी बॉडी घुमाइए, और जो नहीं घुमा पा रहे हैं वो अपने व्हील्स को इस तरह से साइड में पकड़िए और अपनी बॉडी घुमाइए। Come on, 1, 2, 3, 4. Very good. 5, अब यही 6, चीज कुछ दिनों तक करोगे तो अपने आप को, अपनी बॉडी को लचक देख पाओगे, 7, कितना घूम सकती है। 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. The last exercise. So the last touching. So the last is like this, bending it. होल्ड इट। ओके, एक हाथ से अपनी व्हीलचेयर का रिम पकड़िए, एक समझो लेफ्ट हैंड से पकड़िए, और अपने राइट हैंड को नीचे टच करना है, जमीन पे टच करना है। Yes, good. 1, अब अपने राइट हैंड को पकड़िए, आप अपने जिसके आर्मरेस्ट है वो आर्मरेस्ट को पकड़िए ताकि आप नीचे अच्छे से झुक पाए। आपका आर्मरेस्ट जो है वो या तो निकाल दीजिए, हाँ, तो आपको झुकने में आसानी होगी। जिनके आर्मरेस्ट लगे हुए हैं वो अपने आर्मरेस्ट को पीछे खींच लीजिए ताकि आपके स्पेस बन जाए। हाँ, 6, ये अभी आप जितना नहीं कर पा रहे हो, डेली प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छे से हो पाएगा आपसे। 8, 7, 6, 5, 4, 3. आराम से। Next. हाँ, Change. Good, very good. Clap. Nice. So these are basic exercises. You can do it every day. और सिंपल से एक्सरसाइजेज है, बट आप इसे अगर डेली लाइफ में करेंगे तो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी, लचक अच्छी मिलेगी, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, शोल्डर्स है, आपकी नी बोन्स है वगैरह सारे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं इस चीज़ों से। Yes. So the first pillar is over. Exercises, the rehabilitation. Second is appropriate wheelchair. We should have a appropriate wheelchair. So हमारी करेक्ट व्हीलचेयर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी व्हीलचेयर है वो सबके लिए सही हो करके, ये व्हीलचेयर मेरे लिए शायद सही है, सबके लिए सही ना हो सके, तो अपनी तरह की चॉइस की व्हीलचेयर जो अपने मेजरमेंट से हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। At the wheelchair skill training also. So appropriate wheelchair, these are the 4 guidelines. This has been set by WHO, World Health Organization. So they have mentioned that if all 4 things are there, then the wheelchair is called appropriate wheelchair. First one, it should meet functional and environmental needs. It has to meet our own need. So that is our functional, the daily activity need, and also it has to be meeting the environmental need. For example, if we are in Mumbai, so it has to match the road condition as well. If a person is living in hilly areas, it has to match their condition as well. So that is first one. Sorry.
So the second is posture. So the wheelchair should appropriately fit. The fitting. So the fitting is from the upper body. So it's like both the shoulder has to be in the normal position. आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो इतना प्रॉपरली ये स्ट्रेट रहना चाहिए उस पर करके आप जब व्हीलचेयर पे बैठोगे आपकी व्हीलचेयर जो होती है वो आपके जिस तरह से रहन सहन है उसके हिसाब से आपका सही होना चाहिए करके उसमें जैसे आपका फर्स्ट थिंग है सिटिंग में आपके शोल्डर्स जिस तरह से स्ट्रेट इरेक्ट होने चाहिए करके आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली दिखना चाहिए। आप जैसे पूर्णा को देख रहे हो करके कि वो जिस तरह से बैठे आप उसकी पूरी बॉडी को इजीली देख पा रहे हो करके आप इस तरह से बैठिए कि सामने वाला आपको लगे ही ना कि वो व्हीलचेयर पे बैठा है। So that's what. Second, the wheelchair should be safe, durable and locally repairable. So this is main thing. So the wheelchair has to be locally, it should be repairable. Third thing, fourth, it is available and affordable in our country. So if at all the wheelchair is matching all these 4 points, then it's called affordable, I mean it's an appropriate wheelchair. तीसरा पॉइंट है कि आपकी व्हीलचेयर जो भी हो वो आपके लोकल एरिया में ही वो उसकी रिपेयरिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो उस तरह से ट्राई कीजिए करके क्योंकि काफ़ी बार कोई चेयर होती है करके अभी मेरी ये चेयर की बात करूँ ये बाहर से मंगवाई गई है अब ये यहाँ पे लोकली रिपेयर नहीं हो सकती है तो अगर इसमें कुछ भी टूटा फूटा या कुछ भी मेरे को स्पेयर पार्ट चाहिए होगा तो मुझे उसके लिए मंगवाना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा तो हमारी मोबिलिटी इफेक्ट हो सकती है उससे। तो कोशिश कीजिए उस तरह से कि आपकी जो भी व्हीलचेयर हो उसको लोकली रिपेयर हो सके तो आपको ईजिली फास्ट आपका काम हो पाएगा और ये सारे पॉइंट्स जब इकट्ठा हो सकते हैं और उस एक व्हीलचेयर पे जब लागू होते हैं तब वो चेयर आपके लिए फिट कही जाती है। So then the third pillar is wheelchair skill training. So the wheelchair is there, then we should know how to use the wheelchair. So that's what wheelchair skill training. So again in wheelchair skill training, so there are like different skills. Have you anyone already underwent wheelchair skill training? कोई किसी ने व्हीलचेयर का स्किल ट्रेनिंग का कभी किया है मतलब किसी भी तरह के स्किल सीखी है व्हीलचेयर पे आपने किया ओके और कोई किसी ने नहीं ओके। So what are the skills you learned in the wheelchair? आपने क्या क्या सीखा है? व्हीलचेयर से स्टेयर्स उतरना वगैरह सीखा है आपने ओके बढ़िया और कुछ स्लोप उतरना चढ़ना ओके वेरी गुड ओके अच्छा वेरी गुड। Yes, there is a difference before and after learning the wheelchair skills for you. Hello. बहुत चेंजेस आया एक्चुअली क्योंकि पहले तो मैं कुछ कर नहीं पाता था बेड पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता था बट आफ्टर जब भी मैंने ये सब स्किल्स मैंने मतलब है ना लर्न किया उसके बाद में मैं खुद से मतलब बाहर निकलना चालू किया थोड़ा वर्ल्ड एक्सप्लोर किया हूँ मैं पहले तो मतलब घर पर ही रहना था कुछ करने को होता नहीं था बट उसके बाद में ऐसा था कि खुद से बाहर जाने किस पे डिपेंडेंट नहीं रहता इंडिपेंडेंटली बाहर कहीं पे भी जाओ तो आप इंडिपेंडेंटली चलाने में आपको बहुत अच्छा इजीली आसान पड़ रहा होगा वो सबसे बेनिफिशियल था क्योंकि पहले कैसा कोई ना कोई चाहिए रहता था मुझे कि है ना यहाँ पर जाना है तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के जाना पड़ता था बट आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो अकेले ही आया हूँ तो वैसा मतलब वेरी गुड। देखिए व्हीलचेयर ट्रेनिंग का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हीलचेयर ट्रेनिंग से हमें इंडिपेंडेंस मिल सकती है हम कहीं पे भी आए जाए करके देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है हर किसी को स्टेप्स पूरे उतरने चढ़ने ये सब आए करके ऐसा ज़्यादा स्टीप स्लोप हो तो उसके लिए हेल्प ले सकते हैं करके ऐसा बट एटलीस्ट हम लोकल एरियाज़ में जो है वो इंडिपेंडेंटली व्हीलचेयर पे घूम सकें उतना हम सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। Yes. So there is a small video about wheelchair skill training that what we will train at IIT Madras. I will show a video you can watch. In our world today, over 75 million people rely on wheelchairs. Could be home for about 10 million wheelchair users, and many of them struggle with daily challenges due to the wrong choice of device or lack of proper training. Wheelchair Skills Program, transforming lives and empowering wheelchair users worldwide. Our comprehensive program teaches essential skills from navigating uneven terrain and curbs to mastering ramps and public transportation. With the right training, wheelchair users can overcome obstacles and achieve greater freedom and confidence. But
participants in our program experience improved physical health, reduced risk of injury, and enhanced emotional well-being. But the benefits don't stop there. By mastering these skills, wheelchair users are empowered to actively participate in their communities. Part of the ICMR, National Center for Assistive Health Technologies, and the TTK Center for Rehabilitation, Research and Device Development, R2D2. IIT Madras, our program promotes inclusivity, fostering connections between wheelchair users and their friends, family, and neighbors. Together, we are breaking down barriers and creating a world where everyone can thrive, regardless of their mobility challenges. Join us in promoting the Wheelchair Skills Program and help us transform lives, one wheelchair user at a time. Visit our website or contact us to learn more about how you can support and spread the word about this life-changing program, because everyone deserves the opportunity to live life to the fullest. Yes. Thank you. The simple message is, everywhere you see there will be some barriers. So we definitely we should advocate for accessibility, but definitely it will change sometime. But now we don't have to wait until that time. So if you know the skills, easily you can access those obstacles and easily you can get into the community. That's what. It's about learning the skill. So how many of you transfer independently? आप में से कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हो, से अकेले से मूव हो सकते हो? Very good. Very good. The basic thing is, so if you are able to lift above, so if you do push-up, if you are able to lift about 2 inch, you are eligible for transfers. You can independently transfer from one place to other. That is transfer from. पुशअप लेके अपने आप की बॉडी उठाते हो, आपकी बॉडी मिनिमम अगर 2 इंच ऊपर उठ पाती है करके ऐसा पुशअप करके, तो आप ये ट्रांसफ़र सारे बहुत ही आसानी से कर पाते हो करके ऐसा. तो जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं कर पा रहे अब तक, वो पहले अपने पुशअप ठीक कर ले. पुशअप करके जब आपकी बॉडी आपके 2 इंच ऊपर मिनिमम उठ पाती होगी करके ऐसा, तो आप सारे ट्रांसफर्स खुद से अकेले से इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से कर पाओगे. Everything is about skill, and safety also has to be taken care in all the measures. For example, transferring from bed to wheelchair, wheelchair to wheelchair, wheelchair to commode, wheelchair to auto rickshaw, or wheelchair to two-wheeler, or wheelchair to car. You can do it. If you are able to lift like 2 inch push-up, you are able to do all this. You can do all this transfers. It's about learning the skill. Okay. So here we have categorized wheelchair skills into 3 parts. That wheelchair skills, if you see, pressure relief technique, stabilization skills, foundation skills for rolling, moving on straight path, wheelchair turning skills, rolling over slopes or curbs, bed transfers. So these are the basic level wheelchair skills that everyone should know. That's why it is called essential wheelchair skills. ये व्हीलचेयर की जो स्किल्स के ये चीज़ें जो इन्होंने लिखी है यहाँ पे, ये सारी व्हीलचेयर की स्किल्स तो बेसिक है और सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इतना तो मिनिमम होता है कि सबको आना चाहिए करके कि अपनी व्हीलचेयर को कैसे घुमाए. अब आप सोच रहे हो कि घुमाने में क्या है, वो तो मैं इतने सालों से कर ही रहे, घुमा ही रहे करके ऐसा. बट नहीं, अगर आपको ट्रिक पता होगी तो जो अभी आप एफर्ट डाल रहे हो व्हीलचेयर घुमाने में, उसका एफर्ट आधा हो जाएगा आपका. तो इसके लिए वो स्किल्स की बात कर रहे करके ट्रिक्स होती है. हम जब शिफ्ट करते हैं अपनी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे, व्हीलचेयर टू व्हीलचेयर या व्हीलचेयर टू बेड वगैरह के लिए, तो अगर वो ट्रिक्स हमें पता होगी तो हमारी शिफ्टिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. वो आसान होने की वजह से आपकी बॉडी एक्सर्शन कम लेगी. तो वो आपको चीज़ें समझनी है कि ये जो पॉइंट्स है जिसमें लिखे हुए हैं करके, वो आपको आसानी से सीख लेने ताकि आपकी लाइफ ईजी हो पाए. Again, this wheelchair skill is not only for the users, it is also for the caregivers as well. How to navigate the slope, how to navigate a stair. So we will teach them. There are like skills for it. So if they are pushing in a wrong way, they will hurt their upper body or low back. They will get a pain, low back pain. So there are like skills. It has to be taught for the caregivers and also for the users. And one more important thing, for example, if you are going out and somebody is helping you, you should teach them that where they have to where they have to place their hand and how to push. That you should teach others as well. ये ज़रूरी है, आपके लिए ही नहीं है, आपके घर वालों के लिए भी है. जो भी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे आए, फैमिली मेम्बर्स सुन रहे हो आप,
ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें सीखना, कि जब आप कभी किसी अपने फैमिली मेम्बर की चेयर को पुश कर रहे हो, जब आप उनके साथ जा रहे हो, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, कि कहीं आप अपने आप को भी ना गलती से किसी चोट लग जाए, या ना कभी आपके फैमिली मेम्बर जो व्हीलचेयर पे है उन्हें भी कहीं किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि फैमिली मेम्बर्स भी जब स्लोप पे चढ़ना होता है करके वो समझते हैं अरे इसको व्हीलचेयर पे ही तो है, व्हील सी तो है, जोर से धक्का मार देते हैं करके ऐसा, बट उससे आप कोई गिर सकते हो, चोट लग सकती है। स्पीड ब्रेकर से क्रॉस कर रहे हो तो उस पर संभालना होता है, व्हीली करके लेना होता है करके, ये सारी चीज़ें होती है जो फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में सीखनी है, केयर गिवर्स जो साथ में उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है। तो आप जब अभी ये ट्रेनिंग होगी इस चीज़ की, तो फैमिली मेम्बर्स भी कृपया करके सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। So, next the fourth pillar is independence and occupation. If you are able to do your daily activities by yourself, you can become an active wheelchair user. Okay? So daily activities matlab starting from getting up from the bed, using the washroom, bathing, dressing up, eating and going out. Everything you have to do by yourself. If you are able to do it, easily you can become an active wheelchair user. So again the fifth pillar is like structured routine. Okay? So this, the first thing, you got a properly rehabilitated and you are doing exercise. You have an appropriate wheelchair and you learn to, to use the wheelchair, and you are independent in occupation. All these are fine. And you have to plan your day. For example, if, we have like 24 hours and we have to use it. So productively we should use. So that's what is structured routine. So how we can plan? So the basic, I have like two routines are there. Can you just read it? हेलो, अब आपको जो है आपका पूरा दिन का रूटीन किस तरह से बनाना है वो आपको समझ लेना है कि जो आपके लिए क्या बेस्ट पड़ता है। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों का हम किस तरह से कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, वो आपको चीज़ें मैनेज करनी है। अभी जैसे दो लोग हैं, ये एक है गोपाल, समझो ये लेट उठता है, स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन, तो ज़्यादा करके अपना टाइम फ़ोन पे, टीवी पे, या तो दोपहर को सोने में निकाल देता है करके। खाना खाने का कोई सही समय नहीं होता है, कभी भी खाना खाता है, कभी भी एक्सरसाइज करता है, और बहुत लेट रात तक जागता है और बहुत लेट रात को सोता है। दूसरा है सामने सुंदरी, जो जल्दी सुबह 7 बजे उठ जाती है, अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाती है, नाश्ता खाती है, पूरा दिन भर अपना प्रोडक्टिव निकलती है, अपने व्हीलचेयर स्किल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करती है, बैलेंस लंच बहुत ही अच्छे से अपना खाना मैनेज करती है करके ऐसा। दोपहर को जो है बहुत छोटा सा रेस्ट लेती है, बहुत ज़्यादा लंबा नैप नहीं लेती है करके ऐसा, और अपनी एक्सरसाइज को कभी स्किप नहीं करती, अपनी एक्सरसाइज को पूरी तरह से रेगुलराइज रखती है। फ़ोन पे बात करना लेकिन सिर्फ काम के लिए और बहुत ज़रूरी हो तो ही करके ऐसा, और अपना डिनर करने के बाद एक अच्छी तरह से पूरी नींद निकाल लेती है। तो ये दोनों की चीज़ों के डिफरेंस है। आप अपने आप की प्रायोरिटीज़ पकड़ लीजिए करके ऐसा, कि जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है उसको आपको किस तरह से मैनेज करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाए। हाँ, कौन गोपाल है और कौन सुंदरी है? मैं गोपाल हूँ। चलो, और कौन गोपाल है? अपनी लाइफ में कौन कौन गोपाल है? हाथ ऊपर कीजिए। फैमिली मेंबर्स, आप लोग भी हाथ ऊपर कीजिए। अरे वाह, इतनी सुंदरियां है यहाँ पे। That's why you have to come up with a own plan and you have to narrow it. Like basic thing is morning you should do the daily activities, and then you have to do 30 minutes or 1 hour of exercise, and then you should practice the wheelchair skills that what we are teaching today, and then you should be going to the work. Again, evening you can spend time with your family, and then you can have a good dinner, and then you should sleep at least by 9 or 10. So this is a basic thing, and you can plan your own routine as well. आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ है उस तरह से प्लान करके रखिए कि आपको पूरा दिनचर्या निकालने में आसान पड़े। ये चीज़ ऐसी है कि हमें रोज़ करनी है एक्टिविटीज़, और उस तरह से अपने मैनेज करना है कि हमें अपना दिन आसान और एक प्रोडक्टिव तरीके से निकाल पाए। हमें अपना डेली लाइफ का काम भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि हमारे लिए एक अर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। हम अपनी फैमिली को एक सपोर्ट करना चाहते हैं उस तरह से, तो हमारी बैलेंस लाइफ होनी चाहिए हमेशा।
आप सबको यहाँ पे जो भी है ज़्यादा करके सब पैराप्लेजिक्स है करके उस हिसाब से पूछा जा रहा है करके कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो CIC करते हो करके, ऐसा प्लीज़ अपने हाथ ऊपर कीजिए जो जो CIC करते हैं। अब आप लोग जो जो लोगों ने हाथ ऊपर किए, आप लोग खुद अपना CIC करते हो सारे? ओके, वेरी गुड। और बाउल मैनेजमेंट जो है करके वो आप लोगों का किस तरह का है करके, आप खुद से मैनेज कर लेते हो? बाथरूम जाना, कमोड चेयर पे बैठना या डायरेक्ट कमोड पे बैठना, सारी चीज़ें जो होती है अपना खुद मैनेज कर लेते हो? वेरी गुड। अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स हो, किसी को कोई सवाल हो, तो जब ये भी हम बात कर रहे हैं या जो नीना फाउंडेशन की सपोर्ट टीम साथ में है, आप उनसे उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो करके। बिल्कुल कोई झिझक मत रखिएगा अपने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स होते हैं। काफ़ी लोगों को बाउल का इश्यू होता है कि सेकेंड टाइम थर्ड टाइम का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी को ब्लैडर का इश्यू होता है कि भाई हमें कभी भी लीक हो जाता है करके। हम चाहे काफ़ी बार CIC करते हैं, तुरंत 2 घंटे में भी लीक हो जाता है करके ऐसा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप चाहे तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। Definitely. Again, this independent occupation is, so I can't tell it briefly, so I can do a personal assessment and then I can teach you, so how you can do it better. Okay, that's why I didn't go inside into that. And the last pillar is motivation. So if you follow all the 6-1, you can become an active wheelchair user. So motivation is like both aspects, internal motivation and external motivation. Internal motivation is, so the change should happen from our side. So that the thing is, the power is within us. So we have to think that I can do this. Then we will be able to do with other support, that is external support, with adequate family member support and adequate professional support, that is clinical support, you can do it. For example, if you want to climb the slope, so we will be there to help you. And if we are not there, definitely the family members will help you to get onto the stage. So the basic thing is, with your support and the external support, that is internal motivation, and also with external motivation, you can achieve the activity. Okay. So again, external motivation is support from others and the environment. So for example, taking into all places, like you can go to the beaches as well, with right technique and right support. So in this wheelchair skill training, we do take community out also. So for example, we will take you to a beach and we will teach you that how you can go inside the beach. Like these skills, we will be teaching inside one space, inside a room, and you should know how it has to be applied outside as well. So that's why one day we will take you out and then we will ask you to practice all the skills that we have learned in the space. Understood? We will teach you how you can go into the bus. So there is a bus in Tamil Nadu, it is low floor bus. Easily you can get inside the bus. So we will teach you how you can go inside. So and again how to transfer to the bus and how to travel in a train, metro and other things we will teach you. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 दीवारियों में ही सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये प्रैक्टिसेस आपको बाहर ले जाकर घूमने फिरने में भी, जैसे आप डेली एक्टिविटीज़ करते हो, कहीं जॉब पे जाना चाहते हो, घूमने चाहते हो, तो आपको बस में कैसे चढ़ा जाता है वगैरह, कोई ट्रांसपोर्ट के उसमें भी कैसे मैनेज करना है वो भी सिखाते हैं। जैसे समंदर पे ले जाते हैं लोग आपको, ताकि आप मट्टी में कैसे व्हीलचेयर चला सकते हो। आप खुद एक बार जाओगे तो सीखोगे, समझोगे कैसे क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, तो आप इजीली उस चीज़ को समझ पाओगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। हम कहाँ अटक रहे ये आपको बताएंगे, तो वो चीज़ें आप सीख सकते हो। Yes. Overall, this program is like a user-centered program. So we will assess you in the day 1 and then we will plan the program based on your goals. Okay? You will be having certain priorities. So we will plan the program based on your priority and then we will help you with the other skills. Not only the wheelchair skill, independent occupation, other skills also we will guide you, how you can do it and how you can modify your device. All skills we will be guiding you. And this is our setup. So in our setup, the one example is like, it's like an inclusive setup. If you come and see a place, we won't be having a chair. Everybody, we will be sitting on a wheelchair. So if you see, that's the picture. So that is our team. You can't differentiate who is a person with spinal cord injury, who is a normal person.
ये आप जब जाओगे वहाँ पे सेंटर पे आप देखोगे हर कोई व्हीलचेयर पे बैठा हुआ मिलेगा आपको, चाहे वो नॉर्मल इंसान भी होगा तो भी वो व्हीलचेयर पे आपको दिखेगा। तब आपको एक बार के लिए तो मुझे भी एक्चुअली में कन्फ्यूजन हो गया था करके कि कौन नॉर्मल है और कौन ट्रेनर है करके ऐसा, बिकॉज अब जैसे पूर्णा है ये व्हीलचेयर पे बैठा हुआ वहाँ दिखेगा, जो दूसरे थेरेपिस्ट भी है वो लोग भी सब व्हीलचेयर पे बैठे होते हैं। हमको लगता है ये व्हीलचेयर पे बैठे बैठे ट्रेनिंग दे रहे हैं करके ऐसा, बट काफ़ी बार वो जब खड़े होकर निकल जाते हैं करके ऐसा। तो एक चीज़ से उन लोगों का ट्रेंड वहाँ पे इस तरह से बना है, एनवायरनमेंट बना है कि आपको सब एक तरीके से ही दिखते हैं करके। जैसे हम यहाँ नीना फाउंडेशन की टीम बैठे थे तो जो नॉर्मल लोग भी थे वो भी चेयर पर ही बैठे थे, नॉर्मल चेयर पे, वो वहाँ पे भी उसी तरह का एनवायरनमेंट रखा जाता है करके कि सारे लोग व्हीलचेयर पर ही बैठ के आपके साथ काम करेंगे ताकि किसी को कोई अलग फील ना हो। Yeah, that's all. If you have any questions, please ask me. आपके किसी भी तरह के कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। माइक कॉस्ट है प्लस ट्रांसपोर्ट और वो सब लगेगा। और आपको इलेक्ट्रिक वाले का भी कॉस्ट जानना है? दोनों का? Electric one it will cost around 80,000. 80,000 का पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाला, प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल राइट। हाँ, या प्लस ट्रांसपोर्टेशन जो भेजने का खर्चा वगैरह लगेगा वो अलग से। Again, you can reach out to the manufacturer, so they are doing based on आपको CSR. कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे मैन्युफैक्चरर्स के, जो नियो मोशन कंपनी जिसका मैनेज करती है करके, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दे देंगे। आप डायरेक्टली फ़ोन करेंगे तो वो लोग आपको कोटेशंस आपके साइजेस के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफिकेशंस वगैरह समझ के आपको बता पाएंगे। Huh? EMI facility. Yeah, they have EMI facility and they also provide through CSR funds. So they will support you क्या पूछ with रहे the हैं? EMI ना? हाँ, EMI फैसिलिटीज भी सारी कंपनी के पास है और उन लोगों के पास जो है काफ़ी सारे डोनेशंस में भी आती है शेयर्स। तो अगर आप अपना नाम एनरोल करवा के रखेंगे और अगर कोई आता है डोनर्स उनके पास डायरेक्टली कि हमारे पास से चलो 50 चेयर्स हम डोनेट करना चाहते हैं, तो वो लोग आपको उसमें भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अपना नाम कंपनी में जब भी कॉल करें अपनी डिटेल्स एनरोल करवा ले कि हमें इस तरह की फैसिलिटी में इंटरेस्ट है करके ऐसा। EMI में भी अगर आपको पॉसिबल है करके तो वो भी सारी फैसिलिटीज़ आपको करके मिल जाएगी। Thank you. अगर आप किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिएगा। फैमिली मेंबर्स, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप भी पूछ सकते हो। नहीं, ऑन कर रही है, चालू है। हाँ, जो IIT मद्रास में जो ट्रेनिंग हो रहा है ना, उसका मतलब पूरे साल भर होता है कि कितना, मतलब स्पेसिफिक टाइम रहता है, उसी टाइम होता है? उन लोगों का जो सेशंस होते हैं वहाँ पे 15 दिन के होते हैं करके। अभी जैसे इस मंथ वो लोग का सेशन नहीं है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, पूर्णा ने बताया। तो अब उन लोगों का नेक्स्ट मंथ होगा, वो कोई भी मंथ का एक डेट फिक्स होता है वो लोगों का, लगभग 1 महीने पहले वो डिसाइड हो जाता है करके। तो वो डेट्स दे देते हैं करके और वो 15 दिन का सेशन होता है करके पूरा नॉन स्टॉप। सपोज एक एग्जांपल, वो लोग 1 तारीख को शुरू कर रहे हैं तो 15 तारीख तक वो चलेगा करके ऐसा। तो लगभग 2 महीने पहले की डेट्स डिसाइड हो जाती है करके ऐसे। तो आप जब चाहे तब इंक्वायरी कर सकते हैं उनके ऑफिस में, आपको सारी डिटेल्स जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। व्हाट इज द वे, अप्रोच किधर करना है? वो आपको उनका ये देखिए वेबसाइट पे भी कर सकते हैं या उनका आपको फोन नंबर भी दे देंगे वहाँ के उनके ऑफिस का, आप वहाँ पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। So there is a हाँ, इस बैनर का फोटोग्राफ ले लीजिएगा और मैं राजेश्री को इसका जो मेरे पास एक PDF फाइल भी है वो भी मैं भेज दूंगा, तो सब लोग आप अपने अपने घर पे उसका लिंक में भी ओपन कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसमें। So there is a registration form here. You can scan this and you can register it. It's a Google form. You can provide your basic details and then we will contact you. Otherwise, you can directly reach out to Nina Foundation and they will inform us. ये कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, ये यहाँ पे वेबसाइट का नाम है, ये email ID है, कहाँ पे? It's full free. It's provided for free of cost. Training is free, accommodation is free and food also. You just have to travel and come to our place. वहाँ पे जो ट्रेनिंग के आप 15 दिन रहोगे, वहाँ पे आपको IIT मद्रास में हॉस्टल्स है, हॉस्टल में आपको रहने के लिए दिया जाएगा। एक कमरे में 2 जन की रहने की व्यवस्था है और ज़्यादा करके जो रूम्स होते हैं बाथरूम भी अटैच होता है करके, व्हीलचेयर एक्सेसिबल रूम्स होते हैं। खाना भी वहाँ पे कैंटीन मैस है, वहाँ पे आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह सब वहीं पे फ्री में होते हैं। कूपन्स आपको प्रोवाइड की जाती है और आपको तीनों टाइम का खाना वगैरह सब वहाँ पे फ्री में दिया जाएगा। और ट्रेनिंग सेंटर भी वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है, कैंपस के अंदर ही है और पूरी सारी ट्रेनिंग भी 15 दिनों की पूरी फ्री है करके ऐसा। तो आपको सिर्फ जो है आने जाने का जो अपना कॉस्ट है वो आपको लगेगा और वो आपको अपने ऐप से मैनेज करना है। हाँ,
माइक दीजिए। केयर टेकर का जरूरत पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, अगर आप अपने से खुद से सारी चीज़ें मैनेज कितना कर पाते हो उसके ऊपर है। अगर आप केयर टेकर लेकर जाते हो तो भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं जैसे खुद गया था, मैं केयर टेकर लेकर गया था अपना एक साथ में, तो वो लोग एक जन के साथ एक केयर टेकर अलाउ करते हैं। So there is some good news from नीना फाउंडेशन। आप कोई अच्छी खबर सुनना चाहेंगे? हाँ, आप सबका अटेंशन यहाँ पर है। हाँ, तो दिस इज गुड न्यूज फॉर गोकुल एंड पूर्णा ऑल्सो। आप में से जो भी IIT मद्रास 15 दिन के प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना चाहता है जहाँ पर ये सब है, तो नीना फाउंडेशन once a month for the next 6 months will sponsor your travel। बाकी IIT मद्रास करेंगे। तो आप में से जो भी जाना चाहता है आपके केयरटेकर के साथ, आप आपका नाम राजश्री ताई को दे दीजिए और हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन आप जो सीखेंगे यहाँ आकर ऐसा आधा दिन का प्रोग्राम हमारे दूसरे फ्रेंड्स के लिए करेंगे। मंजूर है तो ही हम आपको भेजेंगे। How many of you want to go? आप में से कौन कौन जाना चाहेगा आपके केयरटेकर के साथ? सो यू बी रेडी। जो भी जाना चाहते हैं, एक बात की ध्यान रखिए, यू बी रेडी। आप अकेले जाएंगे तो आप खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट इतना बना पाएंगे। केयर टेकर्स को देखिए, अभी जैसे इन्होंने बताया करके कि केयर टेकर्स को ये लोग अलाउ नहीं करते हैं करके, बिकॉज ये प्रोग्राम उस तरह से डिज़ाइन किया गया है, बताया गया है कि आप इंडिपेंडेंटली आप अपनी सारी चीज़ें कर पाए। और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़िया है करके ऐसा कि आपको कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं व्हीलचेयर से इस जगह पे नहीं पहुँच पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स भी जो है बाहर रोड्स पे जो पूरे IIT के कैंपस में, वो सारे टॉयलेट्स तक भी एक्सेसिबल है। हम लोग जैसे सैटरडे संडे का दिन था, छुट्टी वाला दिन था, हम पूरे कैंपस में व्हीलचेयर पे घूमते रहते थे, तो बाहर घूमते वक्त भी आपको एक्सेसिबल टॉयलेट्स मिल जाते हैं करके, तो आपको चीज़ें मैनेज खुद से करने की पूरी क्षमता आ जाएगी। ये सिर्फ आपको यहाँ पर बताने के लिए नहीं है। नीना फाउंडेशन ऑलवेज बिलीव्स कि वो सर्कल क्लोज हो, और हमें ये रिहैबिलिटेशन इतना बड़ा खर्चा है, इनिशियली होता है, तो हम 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आप मन में रख लो कि हम एक बार जुड़ जाते हैं तो फिर वो सेल्फिश नहीं रहना है कि हम हमारी तक ही सीमित रखें, हम औरों को शेयर करें। सो IIT बी रेडी, बॉम्बे इज कमिंग टू चेन्नई। Now lunch is ready. Come to the canteen। वहाँ पर फटाफट आपके पास सिर्फ 35-40 मिनट से खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने बहुत देरी से शुरू किया है, और फिर पूर्णा आपको कूदना, उठना, बैठना सब सिखाएंगे। थैंक यू। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग, ये लोग पूरा एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखते हैं। ये काफ़ी बार एक वीकेंड का सेशंस होता है सैटरडे का, वहाँ पे म्यूज़िक बजता है, डांस होता है करके, स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, बाहर घूमना होता है करके। वहाँ पे उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग, अभी जैसे उन्होंने एक रिक्शा बनाई है इलेक्ट्रिक, वो लोग मतलब मैंने खुद चलाई वहाँ पे, मैंने उनसे कहा कि मुझे चलाने दो, एक्सपीरियंस करने दो, वो लोग ने बोला ओके चलाइए आप करके ऐसा। तो एक बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग क्लाइमेट होता है करके, सारे लोग आपसे बातचीत करेंगे करके। और ये पूर्णा के साथ आज 2 और लोग आने वाले थे करके, एक मिस विजी करके और एक तमिल सिल्वी करके जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो लोग आज नहीं आ पाए, बिजी थे उसकी वजह से। बट मैं खुद उनसे मिला हूँ। विजी खुद व्हीलचेयर पे है करके, वो एक लड़की है, बहुत ही यंग लड़की है, बट आप जब उनके वहाँ जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो इतना स्वीट स्माइल देखेगी आपको और इतनी अच्छी तरह से आपको ट्रेनिंग देखेगी कि आपको पता नहीं चलेगा वो 15 दिन आपके कहाँ निकल गए। और कोई भी चीज़ में आपको कभी भी पूरे डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जो चीज़ होती है आप नोट करके जाइए, उस चीज़ को प्रॉब्लम को वहाँ एक्सप्लेन कीजिए, वो आपको बहुत ईजीली सिखाएंगे। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, अभी लंच के लिए निकलेंगे, लंच के लिए हम बाजू में कैंटीन में जाएंगे, तो मेरा कहना है कि आप धीरे धीरे 1-1, 2-2 लोग जाना शुरू कीजिए करके ऐसा, तो वहाँ पे जगह एक साथ